Yo guys, namaskaram. So back again with the podcast series. Today we have Sanju Singh joining us. He is a personal development mentor and content strategist specializing in intersection of applied psychology and social dynamics. So in this podcast we cover a lot of topics from his 14-year fitness journey to how he mastered introversion and confidently put his views out there in the public. In this whole conversation, you'll see a lot of insights packed on fitness, overcoming your introversion to become more assertive, overcoming your family dynamics, and a lot of insider realities which not a lot of fitness people talk about. He's a specialist in overcoming introversion, teaching his audience how to move from being invisible to becoming a high status presence. And if I can switch to Hindi now, ये पॉडकास्ट एक वैसी आपको भावना देगा कि एक लौंडा लौंडे से बात कर रहा है एंड the language of this is a mix of English and Hindi. Like it's not totally English. So in this podcast, like for the first 20 minutes, you'll have a feel of a one-way conversation due to some technical video issues. But after Mark 21, it would feel like a podcast. Anyhow, you know the standard drill. Take a pen and paper or open any note taking app on the side for you. Write some awesome notes and learnings for yourself. Write it in a comment section. Help the community grow and you enjoy this conversation. So now you can head over to the podcast. Cheers. Hi Sanju, thanks for joining in. So I was pretty fascinated by a lot of takes that you do on your Instagram handles, particularly on psychology and how you are helping introverts. So I think just to start things off, you're currently working on the confidence guide and a social introversion guide. So we can kick things from that. Like, do you think that introversion is something that is conditioned in us, or is it a biological thing? So, what are your opinions on this? So I would like to introduce this as a frequency because the first book I ever started reading was The Power of Your Subconscious Mind, and उसने मेरे को सिखाया कि how to see everything in frequency. So introverts, being an introvert is not a personality trait. I don't count it as a personality trait. The thing is, it's a frequency, and you are in that frequency, in that certain frequency. और introverts अगर उसको solitude में convert कर देते हैं तो it multiplies by 10 according to me. So introverts का क्या है, वो validation बाहर से नहीं लेते, उस crowd से नहीं लेते जो extroverts लेते हैं. इंट्रोवर्ट्स अपने आप में एक, मैं बोलता हूँ, बहुत हाई एनर्जी चीज है क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं होती किसी एक्स्ट्रा वैलिडेशन की या किसी भी चीज की. द थिंग इज व्हाट यूजुअली इंट्रोवर्ट्स डू, एंड आई वुड नॉट लाइक, आई एम आल्सो एन इंट्रोवर्ट. I mean, I'm recovering from it. I'm doing better in terms of preparing myself to be an ambivert because introverts का सीन क्या है, they guard themselves. एक जो वॉल बनाते हैं वो अपने आसपास, कि अगर वो ट्राई भी करते हैं उस वॉल को तोड़ के बाहर भी जाते हैं तो उनको पता है अगर वापस आएंगे तो उन्हें किसी का डर नहीं, किसी की वैलिडेशन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी. तो एक वॉल बना देते हैं अपने आसपास. आई आई एम सेफ, इवेंचुअली आई एम सेफ, कि मेरी ये वॉल है, मैं हूँ, मेरे लिए हूँ, खत्म वहीं पे. तो ये है. तो अगर कोई स्टार्ट भी करना चाहता है टू ओवरकम द फियर्स, तो वो जाता है, एक स्टेप रखेगा और फिर वापस आ जाएगा. तो यहाँ से उनके अंदर से कंसिस्टेंसी बिल्ड ही नहीं होती क्योंकि उनको एक तो बताने वाला कोई नहीं होता, सबसे बड़ी चीज, मेंटोर नहीं होता उनको. एक्सट्रोवर्ट क्या है, दे टॉक टू पीपल यूजुअली, सो दे गेट गाइडेंस मोर इजीली अवेलेबल क्योंकि उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है. So in that guide, the introversion guide, I just want to give the real based task. I don't want to overcomplicate it. So real task based on like आपने देखा होगा इंट्रोवर्ट जो होते हैं एक्सप्रेशन शो नहीं करते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो अपना थॉट यूज ही नहीं करते, अपना ये जो आई मीन, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन साइंस. तो वो यूज नहीं करते, वो सिर्फ जो उनकी जो बोलना चाहते हैं वो यहीं तक रहता है उनके. जस्ट कीप दिस हेयर इनसाइड ओनली. तो उससे क्या होता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता, आपको कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं होता क्योंकि आप पूरी पोटेंशियल से, अपने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाते. अभी आप देख रहे हो मैं भी थोड़ा सा स्टम्बल कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आई एम ऑल्सो इन दिस प्रोसेस. तो जो स्टेप्स मैंने लिए हैं वही मैं स्टेप्स उनको बता रहा हूँ बिकॉज दे हेल्प,
दे हैव हेल्प मी अ लॉट। तो फॉर एग्जांपल, आपको कैसे चलना है, आपको कैसे बात करनी है, क्या आपको एक्सप्रेशन रखने हैं, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज चाहिए उसके लिए, एंड आपको क्या अपने दिमाग में फीड करना है, सो दैट यू डोंट गेट यू डोंट फील बैड फॉर योर सेल्फ फॉर डूइंग दिस। ये सारी चीजें मैं उस सीरीज में कवर कर रहा हूँ, द रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ एक्शंस। क्योंकि आप अगर पढ़ लोगे, आई मीन किसी आप कोई वीडियो देखते हो फॉर एग्जांपल, आपसे इंट्रोवर्ट के ऊपर जितना मैंने रिसर्च करी, तो मुझे इतना कुछ खास मिला नहीं, हाउ टू कवर इंट्रोवर्ट, मतलब इंट्रोवर्जन। तो जो मैंने फॉलो किया पढ़ के, और जो उस साइलेंस में क्रिएट करके इंट्रोवर्ट के एक स्टेट में रह के, वही मैं उनको बता रहा हूँ दैट यू हैव टू डू दीज स्टेप्स टू ओवरकम दिस फियर। And it is not a big challenge. You just have to be consistent. You have to push yourself. बस इतना करना है। दैट्स इंटरेस्टिंग। नहीं तो आई थिंक पूरी जैसे अब आपकी इंस्टाग्राम सीरीज भी देखते हैं, आई फील दैट यू हैव दैट थिंग कि कहते हैं ना थोड़ा कॉन्फिडेंस से यू आर एबल टू पुट योरसेल्फ। डू यू थिंक इट्स इजी फॉर इंट्रोवर्ट्स टू डू दैट, और इज इट मोर लाइक कि काफी इंट्रोवर्ट्स होते हैं जैसे स्टार्टिंग में जब उन्हें एजर्ट करना हो अपने आप को, दे बिकम वेरी एंग्शियस, in a way they are like very sensitive to a lot of things in their environment. So what are your opinions on this? This is the thing, when I make content about introverts, I can't, I have to make sure that I don't go, like my pitch doesn't go up. And the reason being because we are introverts. I can understand if someone is, अगर मुझसे कोई तेज बात करेगा या फिर कोई ऐसा, तो इंट्रोवर्ट्स आर, आई मीन आई कैन से दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर सेंसिटिव। उनको बहुत धीरे से, आई मीन दैट वेरी फ्रेजाइल, बहुत आराम से समझाना पड़ता है, जो मैंने मैंने नोटिस किया है। क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग। जो मेरी पहले की जो वीडियोस थी, इन दैट आई वाज वेरी पोलाइट, वेरी ओवरवेल्म्ड बाय, जब मैं कंटेंट बना रहा था। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी पिच हाई करी, थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं लीडर वाली करके देखी, तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। तब मैं वहां से समझ गया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, देर फ्रेजाइल। अगर मैं एक चीज को लेके चल रहा हूँ, इंट्रोवर्ट तभी समझ पाते जब आप थोड़ा सा उनके अंदर घुसोगे, देन व्हेन यू विल फील देम। देखो, इंट्रोवर्ट मैं जो फेस करता हूँ, इंट्रोवर्ट्स का सीन क्या है, दे इन मतलब वो मेजॉरिटी ऑफ द इंट्रोवर्ट्स को सोशल एंजाइटी होती है। अब इट कैन बी देयर, किसी भी चीज की हो सकती है, लाइक देयर लुक्स, देयर स्टडी, कितना उन्होंने पढ़ा है। तो अगर उनको नॉलेज कम है थोड़ी सी, तो वहाँ वो चुप हो जाते हैं। और अगर उनका थोड़ा दिखने में, थोड़ा अपीयरेंस उनके हिसाब से, अगर वो इनसिक्योर है, थोड़ा इंफीरियर फील करते हैं, तो वहाँ वो चुप हो जाते हैं। तो अगर वो कुछ बोलना भी चाहते हैं, तो या तो वो उस वाले इनसिक्योरिटी से, उस वाले सेल्फ डाउट से उसमें कुछ बोल नहीं पाते। और कभी कभी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक चीज है जो उनको करनी पड़ेगी, एंड दैट इज यू हैव टू स्टडी मोर। यू हैव टू बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा अपने आप से। जरूरी नहीं है कि आपको सबसे बोलना है, पहले आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी खुद के लिए। देन यू विल बी एबल टू स्पीक टू द पब्लिक, देन यू विल बी एबल टू देर आर, मतलब स्टेप्स हैं काफी इसके कि आप कैसे अपना पॉइंट रख सकते हो। और इसकी एक, मैं कह लो कि एक वो रखनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। एकदम से मतलब हैबिट ही एकदम बिल्ड नहीं होगी। इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, आपको उन फियर से लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट योर फॉर योरसेल्फ। Yeah, I think that's also very interesting. So how do you think introverts can build good relations with people around them? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा socially anxious हैं कि we are unable to speak to a lot of people and build confident relationships with them, या कह लो एक वैसा साइड प्रेजेंट करना अपना which is just helpful for us for expressing our own talents and things like that. दैट इज नाइस नाइस क्वेश्चन, बिकॉज मैं इसके बारे में पढ़ भी रहा था रिसेंटली। तो आप कॉन्फिडेंटली, या आप लोगों को इन्फ्लुएंस, या फिर आप उनसे तब अच्छे से एक रिलेशनशिप बना पाते हो जब आप खुद का, आपका जब सेल्फ एस्टीम इट इज हाई, और आप अपने सेल्फ एस्टीम से सामने वाले को भी हाई फील करा रहे हो। तो एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है वहां पे, राइट। तो जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी, तो आपकी जो कन्वर्सेशन का फ्लो है वो बहुत इजी हो जाएगा।
तो उसके लिए स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, ठीक है। आप कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मतलब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो आप उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, लाइक आप थैंक यू बोलते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये धीरे धीरे एक बिल्डिंग पैटर्न्स है, आई मीन इनसे आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लोग आपको स्माइल करेंगे। तो आपको और आपको भी स्माइल करते रहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो एक सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करते हैं। तो इवेंचुअली आपको अपना सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना पड़ेगा दूसरे के साथ, जो भी आपके अराउंड रिलेशनशिप्स हैं। उसके बाद ही यू विल बी एबल टू स्पीक मोर फ्लुएंटली। Hmm. So that's an interesting perspective. Where do you think that balance lies between कॉन्फिडेंस एंड मैनिपुलेशन? क्योंकि कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग लेट्स से कॉन्फिडेंटली कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इंट्रोवर्ट्स आई फील इन जनरल आर नॉट एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यार वो मैनिपुलेटर है सामने वाला, मीठी बात करके, कॉन्फिडेंस दिखा के ही इज ट्राइंग और शी इज ट्राइंग टू गेट अंडर दिस स्किन एंड बस अपना काम निकाल रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि डू यू थिंक दे गेट मैनिपुलेटेड इजीली? तो इसके बारे में मैं सोच रहा था व्हेन आई वाज हैविंग अ हेयर कट, कि हम सब मैनिपुलेटर्स हैं देखा जाए। एक जो बच्चा जब से उसको माइंड आई मीन उसको जब से एक इंटेलेक्चुअल जो उसकी बिल्ड होती है, जब से वो इंटेलेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो तब से वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट्स को, अपने यार दोस्त को। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका वो लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। और अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो ज्यादा करेगा। इंट्रोवर्ट नहीं करते इस काम को, मेरे अकॉर्डिंग इतना नहीं करते मैनिपुलेट, वो हो जाते हैं मैनिपुलेट। और उसका रीजन ये है कि इंट्रोवर्ट्स का जो एक पोर्शन है, दिमाग का एक पोर्शन है, आई वुड से 1/4 में जो एक पोर्शन है वो खाली रहता है। और मैं एक बुक पढ़ रहा था, आर्ट ऑफ सेलेक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो इंट्रोवर्ट को इजिली मैनिपुलेट करना इसलिए इजी है क्योंकि दे हैव अ स्पेस यू नो टू ओवर थिंक। कोई उनसे कुछ बोलेगा तो वो उधर सोचेंगे, उधर डाल देंगे उसको, और जैसे ही उसमें डालेंगे सबकॉन्शियसली वो चला जाएगा और उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी इंट्रोवर्ट्स को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, और ये ज़्यादातर करते हैं एक्सट्रोवर्ट। और अगर मैनिपुलेटर्स की बात हो रही है तो हम सब मैनिपुलेटर्स हैं डेली लाइफ में। So how can one avoid being manipulated? उसके लिए आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। यू हैव टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल, यू हैव टू स्टिक टू योर इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, मतलब लेट इट बी, उसका आप जो भी क्रिटिसिज्म है आप लो, बट अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दो उसको। रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन वाइल मेंटेनिंग योर ओन, ये बोलूंगा मैं तो। बट यू हैव टू स्टिक टू ए प्रिंसिपल। आपको बाउंड्री एक सेट करनी पड़ेगी कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर मुझे किसी को नहीं अलाउ करने देना अपने दिमाग को इफेक्ट होने के लिए। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। आई थिंक फिर एक वैसे लूप में भी चले जाते हैं कि इंट्रोवर्ट्स को पता नहीं लगता यूजुअली कि दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड एंड आई हैव सीन कि कई बार क्या होता है, एक वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर लूप में चले जाते हैं कि यार हमारे सारे एक्शंस, लेट्स से स्पेसिफिक एक्स वाई जी पर्सन हु इज मैनिपुलेटिंग अस शुड अप्रूव, एंड फिर वो साइकिल बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। आई थिंक लेट्स से इवन इफ फ्रॉम अ जिम पर्सपेक्टिव आई कंसिडर दिस कि जब बंदा एक्सरसाइज किए जा रहा है विदाउट एक हेल्दी बाउंड्री सेट किए एंड फिर वो एक वैलिडेशन के एक्सेसिव लूप में चले जा रहा है, जिसकी वजह से ही इज गोइंग ऑन टू लाइक ऑल दीज डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स एंड थिंग्स लाइक दैट। उस पैटर्न का सीन क्या है कि उस पैटर्न की हम आदत डाल लेते हैं क्योंकि वो होता है कंफर्ट जोन, और वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ कुछ ग्रो तो होता नहीं है। मैं आपको बात बताऊँ, कंफर्ट जोन में तो उनको उसमें मजा आने लगता है तेज। और इसका मेन रीजन है डोपामीन। जब आप किसी से वैलिडेशन लेते हो और वहां से आपको अच्छा रिप्लाई मिलता है, और सामने वाले ज्यादातर जितने भी क्या बोलते हैं जिनसे आप वैलिडेशन लेते हो, वो सारे ज्यादातर दे यूज मैनिपुलेशन, दे यूज ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं। उनका जो रिप्लाई आएगा वो आपके डोपामीन को हिट करेगा, और आपको उस चेन में फंस जाते हो कि आप उन्हीं के पास दोबारा जाते हो। सो इट इज अ गेम ऑफ डोपामीन, आई वुड से, कि आप उसके अंदर ही स्टिक रह जाते हो, उस जो भी आप सर्कल बनाते हो अपने आसपास, आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाते।
कई बार ऐसा भी होता है, आप देखते हैं कई फैमिलीज में, जैसे दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अगर कोई बच्चा है तो आप देखते हैं कि बचपन से ही कैसे एक परफेक्ट इमेज बनाने की कोशिश होती है। एंड थोड़ा वैसा पर्सपेक्टिव भी होता है कि यार कंडीशन कर रही है फैमिली की, यू विल हैव टू बिहेव अ सर्टेन वे, जिससे ना इंसान चुपचाप बस रिप्रेस होता रहता है एंड अपने अंदर बातें दबाते रहता है। एंड आगे जाके इसके बहुत मेजर रिpercussions होते हैं। सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन ऑन दिस? इसके बारे में मैं सोच रहा था वीडियो बनाने का, कि हाउ इंट्रोवर्ट्स आर मेड, एक्चुअली हाउ दे आर मेड इन अ फैमिली। और मैं ही बोलूँगा, देखो मे भी कोई ट्रिगर हो सकता है इससे पेरेंट, लेकिन 101% जो पार्ट होता है एक बंदे को इंट्रोवर्ट नेचर देना, ठीक है, एक ट्रेट देना वो इंट्रोवर्ट का, इट टोट द क्रेडिट गोज टोटली टू द पेरेंट्स, टोटली, इसमें कोई शक नहीं है। उसका एक रीजन ये है, दिस इज अ चाइल्ड, नो, दिस इज अ चाइल्ड एंड हेयर आर द पेरेंट्स फियर्स। तो वो उसके अंदर उसको बाउंड रखते हैं, उस बच्चे को, जो उनका बच्चा है उसके अंदर ही बाउंड रखते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद आके पूछते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं? कॉन्फिडेंट कैसे होगा जब आपने उसको अपने फियर के जो सर्कल है उसके अंदर डाला हुआ है? हाउ कैन बी? तो इंट्रोवर्ट्स को बनाया जाता है, ये हमारे मतलब जब कोई बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, ठीक है, बेबी, उसके पास कोई इंटेलेक्ट स्किल नहीं होती, उसके पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता। आपने देखा होगा, दे कैन लाफ, दे कैन स्माइल एनी एवरीवेयर, मतलब कभी भी शुरू हो जाते हैं रोना गाना। तो उस टाइम पे जो उनके दिमाग में जाता है सबकॉन्शियसली, वहां से वो एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। अब धीरे धीरे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं पेरेंट्स लोग, मतलब कि ये मत करो, ये मत करो, ये तोड़ दिया, एक डर पैदा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, जो मारते हैं ज्यादातर, ट्रॉमा में वही आता है ज्यादातर, तो ठीक है। तो वहां से उनको एक मतलब अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं वो, और उस बंधे की उससे तो उससे क्या है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने का सोचते ही नहीं। तो वहां से उनको एक ऐसी वो बिल्ड कर लेते हैं अपने लिए कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे डर है, समझ रहे हो आप, एक फियर पैदा हो जाता है उनके अंदर। तो वो कुछ भी नया करने से डरते हैं, और ये वहां से हैबिट शुरू होती है, आई मीन छोटी एज से। और बड़े बड़े होते होते जब हम आते हैं तो हम अपने डिसीजन वैसे ही लेते हैं, और वैसे ही हमारा फ्यूचर शेप हो चला जाता है, हमारा रियलिटी बन जाता है वो, कह सकते या एंड आई थिंक जैसा आपने ये सर्कल बताया, पीपल फियर सो मच गोइंग आउट ऑफ दैट सर्कल कि यार हम कुछ गलत ना कर दें। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन जिम, लेट्स से दे गो एंड लाइक पूरा एक डाइट चेंज होता है। आप देखते हैं कि जैसे प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा लेना और ये सब, एंड देन घर पे लड़ाई है प्रॉपर कि यार जो नॉर्मल दाल रोटी सब्जी है, इससे हट के नाउ वी हैव टू ऐड सो मेनी अदर सोर्सेज टू मेक अस रिच। बट अब वहाँ भी देखते हैं एजर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है इनिशियली। एंड लेकिन व्हेन वी आर नॉट एजर्टिंग आवरसेल्फ, या हम काफ़ी लो है अपनी एजर्शन में, ओवरऑल इट जस्ट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स एज यू करेक्टली मेंशन कि आर beliefs shape our reality. So I think वो upgrade करना is also a big battle within the family, considering you're picking up all these productive habits in life. अभी हमारे इंडियन आप डाइट देखोगे, ठीक है, हमने उसको ऐसा अपने अंदर इंडल्ज कर लिया है, ऐसा डाइजेस्ट कर चुके हैं हम उसको कि हमें यही खाना है। तो आप जब अच्छा खाओगे नहीं, आप वही अपने बच्चों को खिलाओगे, और न्यूट्रिशन का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी बच्चे पे या किसी भी इंडिविजुअल पे। वट एवर यू ईट यू बिकम इट। तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। अब हमारे जो मेरे फ्रेंड है एक, तो वो मुझसे शेयर कर रहे हैं कि मेरे को यार बहुत ज़्यादा मतलब एनजाइटी और ब्रेन फॉगिंग हो रही है, मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला आप अपने ब्लड टेस्ट कराओ, स्पेशली फॉर B12। उनकी एज है 32, मैं 30 हूँ, वो 32 है। तो उनका जब उनका टेस्ट हो गया, रिजल्ट आए, तो उन्होंने देखा उनका B12 बहुत लो है, एंड दैट वाज अ मेजर रीज़न। उन्होंने फिर शॉर्ट्स लिए B12 के, विटामिन B12 के, और उसके बाद ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लैग कर रहे हैं क्योंकि हमारी डाइट से हमें वो मिलता नहीं है। तो और हम बाहर से सप्लीमेंट लेना, ऐसा एक स्टीरियोटाइप बना दिया है कि सप्लीमेंट लेंगे तो दवाई ले रहा है, ऐसा बना दिया है। अभी मतलब मान लो कोई रिलेटिव आया हुआ है, अब मैं तो लेता हूँ,
मैं लेता हूँ अपना मल्टीविटामिन और जितने भी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट विच आई नो कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि मेरे को फिटनेस इंडस्ट्री में हो गए अराउंड 14 ईयर्स। मैं 9th में था तब स्टार्ट कर दी थी मैंने। आई नो सर्टेन थिंग्स, मुझे काफ़ी चीज़ें पता है, लेकिन फिटनेस में मैंने घुसना नहीं चाहता। एंड द रीजन बीइंग, फिट रहना इज एन इंडिविजुअल चॉइस। इट्स अ सेल्फ रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। आपको फिट रहना ही चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग फॉर यू हैव टू मेक इट फॉर द कंटेंट, डाइटिंग एंड बीइंग अ फिट गाय। वो आपको होना ही पड़ेगा अगर आपको यहाँ इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो, मेरे अकॉर्डिंग। तो कुछ सप्लीमेंट स्टीरियोटाइप बना दिया है कि ये तो दवाइयाँ खाता है। मैंने काफ़ी बार सुना है, जैसे अपने रिलेटिव्स या कोई आ जाता है कि ओ कितनी सारी दवाइयाँ खा रहा है, देखो इसको। मतलब मुझे पता है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे पता है वो बॉडी में कैसे काम करती है। तो ऐसे ही आपको भी अपने लिए अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा आपके लिए आपके अंदर डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है हम अपने दिमाग पे इतना ज़ोर डालते हैं, ठीक है? कब और हमारा जो अंदर का एक तरीके से कह लो कि सॉफ्टवेयर ठीक है लेकिन हार्डवेयर खराब है। तो अपने हार्डवेयर को रिपेयर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं, सर्विस के लिए डालना पड़ता है उसमें। तो वो आपको, हर इंडिविजुअल की बॉडी टाइप अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है। उसको बॉडी को समझना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसको सप्लीमेंट, टेस्ट सब कुछ कराने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिटनेस का जो मतलब बना दिया गया है, वो ये बना दिया है कि जिम जाओगे तो एक सर्टेन टाइप की फिजिक ही बनेगी, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी वैसी हो जाती है कि भाई अभी आपकी एब्स नहीं आई, इतना टाइम से जिम जा रहा है, ये तो नहीं हुआ तेरा, आई में ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लोगों ने एक स्टीरियोटाइप बना दिया है। तो उससे क्या है, लोग उसी सर्कल में रहते हैं। अब मैं जिम जा रहा हूँ, उससे फिर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इन्फीरियोरिटी आती है, दैट वो ज्यादा मस्कुलर है या ये मेरे से थोड़ा वो है। और वो आती किस लिए, क्योंकि उनको अपना बॉडी गोल ही नहीं पता। उनको बॉडी गोल ही नहीं पता, वो विजुअलाइज नहीं करते उस चीज को कि मुझे ऐसा दिखना है, मुझे सिर्फ फिट दिखना है, ताकि मेरे जो ब्रेन के अंदर जो मेरा ब्लड फ्लो हो रहा है वो तेज हो, एंड आई एम मतलब मेरी इंटेलेक्ट ज्यादा अच्छी हो, मेरा माइंड ज्यादा अच्छा हो, मेरे अकॉर्डिंग ये। So I think Hanji, fitness, we were there specifically. हाँ। You mentioned a very great thing about फिटनेस एंड मैं आपकी एक दो रील्स भी देख रहा था जब आप जेनजी और इस सब पे थोड़ा आई थिंक अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे थे, राइट? तो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी ट्रबलिंग रूप दैट वो जो हम वैलिडेशन वाले भी बात कर रहे थे कि समटाइम्स पीपल जस्ट गो टू द एक्सट्रीम मोस्ट लेंथ्स which just hurts them in the long term, right? So what's your experience with, why do you think इतना ज्यादा body dysmorphia exist करता है in this culture? बॉडी डिस्मॉर्फिया इसीलिए करता है ना, जो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास फिटनेस गोल्स नहीं है, ठीक है? और अभी जो कल्चर हो गया है, पहले क्या था कि पहले वो ये जो अभी शेप अटेन कर पा रहे हैं बंदे, ठीक है? अब इतना कॉमन हो चुका है कि लोगों को फोमो होता है कि आई एम नॉट लुकिंग लाइक इनटू दैट परफेक्ट शेप, जबकि परफेक्ट शेप वो होती नहीं है एक हेल्दी इंडिविजुअल की। तो उसको देख के बंदों को इनसिक्योरिटी होती है, बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है, हम्म। बिकॉज दे आर टेकिंग सब सब्सटेंसेस, दे आर ऑन ड्रग्स, दे आर टेकिंग पीईडीज। बराबर। तो जी, तो वो शेप अटेन कर लेते हैं और वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर फील करते हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ अभी जिम में। तो और उनके अंदर उससे फिर एग्रेशन आता है, ठीक है? जो मोस्टली जेनजीज, अभी आपने देखा होगा जेनजीज सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, ठीक है? सेम हेयर कट, सेम बॉडी, सेम द वियरिंग स्टाइल ऑफ देम। तो मेरे से एक बंदा था, तो मैं उसको रोज नोटिस भी करता था जिम में। तो ही आस्क्ड मी टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ हिम, वाज पोजिंग, और मैं गया, मैं कहा ठीक है चलो, मैंने फोटो खींची सारी चीज। तो अभी मैं हूँ 30 का, ठीक है? वो बंदा का जो हो रखा था स्ट्रक्चर बॉडी का, और वो उसकी एज, मैंने उससे पूछी कि आपकी एज क्या है फोटो क्लिक करने के बाद। मैंने सेड ओके, अच्छी फोटो है। तो उसने कहा 22। एंड आई वाज शॉक्ड कि अगर 22 का बंदा ऐसा अभी दिख रहा है, देन जब ये मेरी एज में आएंगे, हमारी वाली 30s में आएंगे, देन हाउ वुड दे लुक? कैसे लगेंगे? क्या इनका दिमाग, क्या इनके हार्मोन्स का हाल हुआ होगा उस टाइम पे? तो ये भी एक चीज है। आप पीईडीज क्या है, अभी इंफॉर्मेशन इतनी पब्लिक हो चुकी है, आप चैट जीपीटी से थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा सा आपको घुमाना है बस चैट जीपीटी को, एंड जी इट विल जी टेल जी। यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, द कंप्लीट साइकिल।
तो हम्म पीईडीज का रोल बहुत है, मैं मेरा जो मानना है इसमें हम्म कि हम्म हम्म अगर बंदों को देख के इनसिक्योरिटी होती है और वो होता है क्या बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया, वो इस वजह से होती है। एंड आई थिंक एक बड़ा रीजन ये भी इनसिक्योरिटी है कि क्या मेरे को लौंडियां मतलब टलानी है, तो थोड़ा वैसा है, मतलब दे जस्ट गोइंग टू ऑल दी साइकिल्स लूजिंग आउट इन द हम्म। लॉन्ग टर्म, बिकॉज इसका अगर आप रिसर्च पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा था, हाँ जी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और मैरिजेस में दिक्कत आ हम्म। रही है इस टाइप की चीजों से, हम्म। देन लॉन्ग टर्म मतलब अब अपने आप को गोली मारना फुट पे। अब सीन ये है, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा। अभी देखो, मैं अगर किसी को समझाऊंगा, मैंने ये चीज देखी, जैसे हम तरुण गिल को देखता हूँ मैं, और अभी यतेंद्र जी हैं, यतेंद्र भाई हैं, उनको देखते हैं हम। तो वो अगर आप बताते हैं ना कि भाई ये चीजें मत लो, और ये चीजें से ये होता है, मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया, ठीक है, आपको प्रेजेंट करके दिखा दिया कि मैंने ये यूज किया तो मेरा ये हाल हुआ और अब मैं ये हूँ। उसके बाद अभी क्या है, जेन जीस में इतना ज्यादा, मतलब वो अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा ह्यूमरस हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डैंक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर ही नहीं पाते, वो यहाँ पे डाल ही नहीं पाते, वो हर चीज में क्रिटिसिज्म ढूंढते हैं, एंड दैट इज नॉट कंस्ट्रक्टिव, इट इज डिस्ट्रक्टिव। तो अगर कोई यस। उसको बता रहा है, उनको बता रहा है कि भाई इन चीज से नुकसान है, तो वो क्या बोलेंगे, 100 बिल्ली खा के, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ। हम्म मतलब वो आपको लाइव एग्जांपल करके बता रहे हैं कि ये चीजें मत करो यूज, इनसे यहाँ पे हार्मोनल बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होता है, एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाई एनी मीन्स। जो एक बार हम्म चीज बिगड़ गई, वो बिगड़ जाएगा स्ट्रक्चर। और मैं भी इसलिए इतना बोल पा रहा हूँ कि मैंने भी पास्ट में लिए हैं, एंड आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। मैंने लिए क्योंकि मेरे गोल्स अलग थे उस टाइम पे। आई विश टू बी ए बॉडी बिल्डर दैट टाइम। तो दैट इज द थिंग। गॉट इट। मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ, वो चीज बता सकता हूँ, बट आई एम सोबर इन टर्म्स ऑफ दिस पीईडीसी फ्रॉम लास्ट 4 years, एंड आई एम फिट एंड फाइन। अब नॉलेज गेन करी है तो उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा। आप एंड आई थिंक आप क्या। थोड़ा सेंस ऑफ अवेयरनेस भी है ना, जब आप अवेयर कर पा रहे हो अपने एक्सपीरियंस से कि जस्ट डोंट हम्म। go in paths which might be destructive for you. इस पे मुझे एक कोट याद आ गया, कंप्लीटली तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि अ मैन शुड नो हिज पोटेंशियल। ठीक है, Hmm. क्या उसके लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स तक। अब लिमिट्स का मतलब ये लोग क्या समझते हैं कि लिमिट्स, हम कितना लिमिट्स में अपने अंदर बॉडी में पीईडी डाल सकते हैं कि हम दिखें। समझ रहे हो, वो गलत समझ रहे हैं इस चीज का मतलब। और इसका मतलब ये है, आप नेचुरली कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, बी इट मेंटली बी इट फिजिकली। Hmm. इसका भी बहुत ज्यादा गलत मतलब लोगों ने निकाल लिया है कि मैं कितना अपने अंदर ऐसी चीजें सब्सटेंस डालूं कि मैं ऐसा दिखूं, या मेरा कितना शरीर बन सकता है, मेरी कितनी बॉडी एनहांस हो सकती है। तो ये भी एक बहुत Hmm. ज्यादा मिसकंसेप्शन है। Hmm. Do you think people should be natural in general? I think the goal of fitness should be कि आप मतलब basic अपने आप के बारे में feel good कर पा रहे हो, but where do you think one should draw that line? Let's say अगर कोई compete भी कर रहा है, I understand that's the need maybe for हम्म। some time, but what's your opinion on देखो, this मतलब between? जो बंदे compete कर रहे हैं उनकी कैटेगरी अलग है, उनके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। उनका गोल है, वो उससे डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है उस चीज के लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले बंदों पे। तो ये बंदे शॉर्ट टर्म के लिए इन चीजों को यूज करते हैं। Hmm. और इसमें भी एक और कैटेगरी है, मेडिकल वाली। फॉर एग्जाम्पल, Hmm. आप 40s में हो, आप फिर 35 में हो, 30s में हो, और आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि यू हैव टू बी ऑन टीआरटी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट Hmm. थेरेपी, क्योंकि आपको Hmm. नीड है उस चीज की, क्योंकि Hmm. आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है। और उसकी भी डोसेज जो डॉक्टर्स देते हैं वो बहुत लिमिटेड, और उनका पूरा एक सिनेरियो होता है, एक पूरा कोर्स होता है। तो Hmm. एक कैटेगरी वो हो गई जिसके लिए वो बने हैं, असली यूज उसका वही है। तो Hmm. वहां पे यूज करते हो आप, वो जो उनसे भी ड्रग्स वो प्रेस्क्राइब करते हैं वहां पे चलते हैं। लेकिन आप Hmm. उसको अगर अपनी डेली लाइफ में डालोगे बिना किसी कंसल्टेशन के और बिना किसी उसके, उसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको उस चीज की जरूरत है तो आपको वही लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वरना वो नुकसान करेगी। ग्लास ऑफ It. वाटर, इट इज फुल, Hmm. मतलब आपके नेचुरल जो हॉर्मोन्स है वो पहले ऑलरेडी फुल है। आप उनकी Hmm. पोटेंशियल देख ही नहीं रहे, आप ऊपर से और डाल रहे हो, तो होगा क्या, इट विल ओवरफ्लो इवेंचुअली। एंड आई थिंक दैट साइकोलॉजी ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स एज वेल, राइट, कि हमें पुश नहीं करना अपने आप को थ्रू अ नेचुरल वे। कई बार ऐसा होता है जस्ट शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, हाँ यस यू जी, कैन कॉल दैट्स द वर्ड। इट।
दैट्स इंटरेस्टिंग। व्हाई डू यू थिंक अब जैसे इन जनरल थोड़ा वैसा भी सिस्टम आता है ना, एक अगर हम उस डिबेट में जाते हैं नेचर वर्सेस नर्चर वाली, राइट? कि हम्म कईयों का लेट्स से दे हैव दिस इंक्लिनेशन कि हमें पूरा पुश कर देना है एंड तक, हमें जानना है अपना पोटेंशियल। और कई नर्चर ही ऐसे हो रहे हैं कि यार नहीं, आप बस जुगाड़ मेकशिफ्ट से चलो। सो व्हाट डू यू फील, मतलब ऐसा व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? In terms of bodybuilding, I mean यस fitness. यस यस, इन टर्म्स ऑफ दिस फिटनेस थिंग, या। अब वही है ना, वो मेंटालिटी है सबकी अलग अलग अब। हम्म, और ये अब ज्यादा हो गया है, क्योंकि जब हमने कभी स्टार्ट किया था जिम, लाइक इन 2012, और मतलब उससे पहले, जी। तो उस हम्म, टाइम हमें, जब हम सुनते थे कि वे प्रोटीन, तो या। हमें वो गोल्डन साउंड होता था एकदम हम्म, उस टाइम पे, कि वे प्रोटीन अगर हमने ले लिया तो हमारी बॉडी बन जाएगी। हम्म, हमें पोटेंशियल पता थी वे प्रोटीन की, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्कआउट, डूइंग वर्कआउट, तो मैं वे प्रोटीन लिया। ठीक है, मुझे उसके हम्म, इफेक्ट देखे, मुझे पता चले कि नेचुरल पोटेंशियल बहुत है हमारी बॉडी में। वुड मैंने कंज्यूम किया उसके साथ, और डाइट ली, तो मुझे नेचुरल अपनी पता चल गई। उसके बाद हम्म, आता है कि आपको यहाँ से कहाँ लेके जाना है, क्योंकि हम्म, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर गोल। अगर आपको ये है कि मेरे को फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, या आपको कोई फिटनेस के गोल्स हैं जो एक नॉर्मल वेल बीइंग से ज़्यादा है, तो आपको लेना चाहिए, लेकिन गाइडेंस में। लेकिन आपको अपनी पूरी पोटेंशियल नेचुरली देखनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली इतने सारे सप्लीमेंट हैं। आई वुड से क्रिएटिन इज़ अ नेचुरल स्टेरॉइड। क्रिएटिन यस। हम्म, क्रिएटिन हो गया। आप कॉर्टिसोल कम करने के लिए अश्वगंधा खा सकते हो, अश्वगंधा कंज्यूम कर सकते हो। इट विल लोअर योर कॉर्टिसोल लेवल, एंड इवेंचुअली, आई मीन, इट इज पैरेलल, आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेस्टोस्टेरोन। आपका टेस्टोस्टेरोन राइज होगा अगर आपके कुछ फैक्टर्स कम है, जैसे कि कॉर्टिसोल कम है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा। तो ये चीजें आप ऐड करो ना। आप डायरेक्ट ही बाहर से लोगे तो फायदा नहीं है। हम्म, no, that's true, I think, and फिर वो choices भी लेना कि I need to fix my sleep, fix my diet, and all of those things हम्म also kind of come into play, right? काफी हम्म लोग, I तो think, वो टोटली चीज डिपेंड्स just। ऑन गोल, द डिजायर, हम्म, व्हाट यू डिजायर टू बी। Oh, that's interesting, great. So I think एक बहुत interesting चीज आपने ये भी उठाई थी कि like when you were just starting all of this out, you mentioned कि यार आपके थोड़े relatives आके आपको ऐसे बताते थे in general कि ऐसा हम्म है वैसा है, हम्म which brings me to an interesting point about, I think, conditioning, and if we just tie it back to like the whole discussion we have had around introversion हम्म and validation and all of that, right? अब मैंने एक हम्म बहुत बेसिक पैटर्न ये देखा है कि इंडियंस इन जनरल हैव दिस हैबिट ऑफ अवॉइडिंग कन्फ्रंट्रेशन, कि हम्म कई बार लेट्स से देयर आर सर्टेन थिंग्स हमें लगता है बस टला दो, सीन नहीं होना चाहिए, इवन व्हेन इट्स suppressing our individuality and इस टाइप की चीजें। why do you think that happens and how one can fix that, let's say अगर हमें confront करना हो for our beliefs and for our values? यार, देखो, इसको कन्फ्रंटेशन को बोलूंगा मैं, ये दो टाइप के माइंडसेट है। एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। तो हमारे जो मिडिल क्लास, मैं आप बोलूंगा, मैं बिल्कुल कैटेगराइज ही कर देता हूँ इसको। जो मिडिल क्लास है उनका सबका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, क्योंकि वो जिस माइंडसेट से निकल के हैं वही वो पास ऑन करते हैं अपने बच्चे पे। तो वहां से ना वो ग्रो कर पाते हैं, ना उनको होने देते हैं। अब आप कंपेयर करना, मोस्ट ऑफ द जितने भी बिजनेसमैन है, ठीक है, जी। बिजनेसमैन या बड़े एंटरप्रेन्योर, या फिर जो भी लोग हैं, वो हम्म, ग्रोथ माइंडसेट होता है उनका। आप हम्म, देखोगे, दे टॉक अबाउट दैट, दे टॉक अबाउट ग्रोथ, मतलब बहुत अच्छी चीज हो, तो वही वो पास ऑन करते हैं अपने बच्चों पे। तो वो इन छोटी मोटी जो चीजें हैं, जहाँ कन्फ्रंट करना होगा, कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है मिडिल क्लास में, जहाँ मतलब आपकी सारी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाती है। आप हम्म, कुछ रख ही नहीं पाते अपना पॉइंट। वहाँ ये क्या है, यहाँ पे वहाँ पे इतनी छोटी छोटी चीजों पे बात नहीं होती। दे पास ऑन गुड थिंग्स टू द माइंड ऑफ देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हम खुद अगर फिक्स्ड माइंडसेट से हैं तो अपने बच्चे को भी वही देते हैं। एंड फिर आई थिंक एक वो भी डालना, व्हाट आई सीन है कि फिर टॉक टू लॉट ऑफ माय बिजनेस फ्रेंड्स, उनमें ऐसा है कि यार घुस जाना एकदम, कोई जजमेंट का डर कुछ भी नहीं है, कि हम बस कैसे कैपिटलाइज कर हम्म। सकते हैं, मैक्सिमम रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। अब जी। इन आर केस लेट्स से मिडिल क्लास ही होता है यार, फलानी फूफी क्या बोलेगी, उसका ये सीन है, और हम्म जजमेंट से मतलब काफी डर लगता है। जो मैंने बताया ना, जो पेरेंट वाले फियर्स होते हैं, वो हम्म, जो सर्कल मैंने बनाया, वो सारे उसी के अंदर आते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, व्हाई माय चाइल्ड इज नॉट कॉन्फिडेंट, व्हाई ही इज नॉट
वो ऐसे बात कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बात करते, वाई इज नॉट एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट आपको क्या लगता है, इसी जो ये वाला जो एनवायरनमेंट है, इसी से एक इंट्रोवर्ट पैदा होता है। हम्म एक्सट्रोवर्ट के साथ ये चीजें नहीं होते, उनके जो पेरेंट्स है वो उनको खुली छूट देते हैं, ठीक है। अब हम्म खुली छूट में कोई जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ज्यादातर, वो एक मेंटालिटी बिल्ड कर लेते हैं, वो एक मतलब उनकी कम्युनिकेशन बिल्ड कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि वो बोलने हम्म में उसको प्रैक्टिस रिपीटिशन में आ जाता है उनके। हम्म हाँ, तो उनको इसलिए अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलती है मेरे अकॉर्डिंग। हम्म। जी जी, आई थिंक वही एक्सपोजर वाली बात जो आपने एक रील पे की थी, राइट, कि हम जितना एक्सपोज एक्सपोजर। करेंगे अपने आप को, हम्म। हाँ, उतना वील काइंड ऑफ ग्रो अ लॉट, which is very interesting. No, that's true. हम्म। So, what do you think? I think आप मेरे को थोड़ा, let's say अगर कोई मिडिल क्लास लौंडा ये देख रहा है, कोई भी है, मान लो जजमेंट वाला हम्म। चीज हटानी है उसने, तो what practical steps he can take? Any, if I can use the word, real world drills he can do to just move in a direction that he feels confident in. अगर एक मिनट, मतलब मैं बताता हूँ मैंने कैसी चीज को डेवलप करी, ठीक है। आपको एक सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, आपको आइसोलेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए। बिकॉज व्हेन यू गिव अ थॉट टू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर, नो। उसको टाइम होने में, मतलब आपको चाहे आप अच्छी चीजें देखो, पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, दैट आई एम कॉन्फिडेंट, I can do whatever I want. I usually do, like several times a day. I listen to positive affirmation, and that helped me Hmm. a lot. तो वो सुनो, और आप अच्छे लेक्चर सुनो, और लेकिन उसको अप्लाई भी करना, और अप्लाई करने के लिए, इम्पोज करने के लिए अपने लाइफ में, द ओनली वे इज टू रिपीटेशन। आपको रिपीटेशन में लानी पड़ेगी वो चीज। यू हैव टू Hmm. बी स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेंगी तो आपको कॉन्फिडेंट आए। कॉन्फिडेंट बंदा कब होता है? जब उसको थोड़ा ज्यादा पता होता है, जब उसको जनरल चीजें से ज्यादा पता होता है, उसके पास स्किल होती है। सो यू हैव टू फाइंड योर स्किल एंड वर्क ऑन इट। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू विल गिव यू द बूस्ट अप इन योर कॉन्फिडेंस, अकॉर्डिंग टू मी, Hmm. बिकॉज इट हैज Hmm. हेल्प्ड मी। So I can Hmm. guide whatever that helped me. Hmm. That will be Hmm. a practical, uh, डेफिनेटली आई थिंक। और me- एक चीज मैं ये भी पढ़ रहा था कार्ल यूंग की कि यार, कई बार लेट्स से जब आप इतना काम करते हो अपने आप, यू स्टार्ट बिकमिंग अ मिसफिट ऑफ अ सॉर्ट, राइट, बट देन दी Hmm. जॉय इज कि जितना आप काम कर रहे हो फ्यूचर में Hmm. जो उसी सफरिंग से आ रहा है इंसान, यू विल काइंड ऑफ बॉन्ड ऑन अ वेरी डीपर लेवल। सो द कॉस्ट राइट नाउ इज नथिंग जब आप इन लोगों को Hmm. लेके छोड़ते हो पीछे, क्योंकि हम काफी हाँ। डरते इसलिए ना कि यार फलाना लोग ये बोलेंगे, छोड़ो ऐसे ही रहते हैं, और उस टाइप की चीज। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी गुड मोटिवेशन फॉर वन सेल्फ कि यार एटलीस्ट देखे तो कि Hmm. कितना पोटेंशियल जा सकता है हमारा। Hmm. हर इंडिविजुअल का बहुत पोटेंशियल होता है, मैं बोलता हूँ, जब लेकिन वो पता जब चलता है व्हेन यू एंटर इन एंड यू नो गिव योरसेल्फ अ कमिटमेंट एंड यू स्टिक टू इट, यू डू इट कंसिस्टेंटली, तो तभी उसको अपना पोटेंशियल पता चलता है। ऐसे नहीं। अभी हमारा क्या है, मैं देखता हूँ कि बीट फिटनेस गोल, बीट रीडिंग अ बुक, बीट फिनिशिंग अ गुड थिंग लाइक गुड मूवी और समथिंग, हम्म पीपल स्टार्ट, बट वो 1 या 2 दिन में क्विट कर देते हैं, हम्म सिर्फ 1 या 2 दिन में। अभी हम जैसे बोलते हैं कि कोई भी हैबिट को भी इट टेक्स लाइक 21 days टू फॉर्म अ हैबिट। हम उस रेशियो तक पहुंच ही नहीं पाते, बंदे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वो पहले ही क्विट कर देते हैं। तो उनको पोटेंशियल पता कहाँ से चलेगी किसी चीज की भी। दैट्स ये ट्रू। सीन है। हाँ। व्हाई डू यू थिंक वी लाइक क्विटिंग सो मच ऑन गुड थिंग्स? द ओनली आंसर फॉर दिस आई हैव दिस कंफर्ट जोन। यस, हम अपने कंफर्ट जोन में इतने ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुके हैं, और जो हमारे स्क्रीन का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, विच इज रियली हार्मफुल, डायरेक्टली हार्मफुल। एंड फिर हाँ, आई थिंक हाँ जी, ये भी लगता है कि लाइक अब जिन्होंने पैसा बनाना है इस चीज से, कोई भी ऐप है या कुछ भी, राइट, वो तो अपना मतलब मेंटल हेल्थ आपकी लगा के अच्छे से कट लेंगे पैसा बना के, राइट, यू विल ओनली सफर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। तो दैट्स ऑल्सो देयर। एंड आई थिंक मैं एक पर्सपेक्टिव अभी ये भी पढ़ रहा था कि जो हमारी जनरेशन है, जैसे 2010-20 जब ये नेट अर्ली अर्ली आया है, राइट, वी आर जस्ट लाइक रैट्स हु आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड अपॉन,
क्योंकि अभी इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कुछ पता नहीं, जो अब खैर दिखते हैं कि यार चीटिंग हो रही है या फलाना कुछ फालतू के सीन आप देख रहे हैं, टेंशन स्पैम भी कितना लो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज इश्यूज। अभी आप देखना, जिनका अभी मैं देख रहा था यार, मेरी स्टोरी देखी थी एक बंदे ने, द गाय वाज 13 years old एंड ही वाज गिविंग मोटिवेशनल स्पीचेस। हम्म। पीछे एक बुक थी कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस की। तो आई वाज हम्म। वंडरिंग, मतलब ऐसा एक एनवायरनमेंट बना दिया है हमने, ऐसा एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है, एक वर्चुअल वर्ल्ड, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो नए नए पेरेंट्स हैं, कि बच्चे फोर्स हो चुके हैं उस चीज को करने के लिए, इवन दो दे डोंट वांट टू। बस एक रैट हम्म। रेस में घुस चुके हैं, एक उसमें घुस चुके हैं कि हाँ, और दे आर ऑल आफ्टर मनी, शॉर्ट टर्म मनी, और इससे कुछ हम्म। होना नहीं है, इट विल बी अ टाइम वेस्ट। बिकॉज आप अपने आप को टाइम तो दो यार, सोचने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। लाइफ जब धक्के मारेगी तब आप समझोगे ना। ऐसे आप हम्म। मोटिवेशन नहीं दे सकते। जो जो नए बंदे आ रहे हैं उनके लिए लाइन है, एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग दम। इट इज बहुत इंटेलेक्चुअल बात है। अब हम्म। अगर हम चीज कोई बात कर पा रहे हैं किसी बारे में, तो इसलिए कर पा रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस रहे, हमने बुक्स पढ़ी हैं, हम उस हिसाब हम्म। से, हमारा मेंटेलिटी है कि हम उस हिसाब से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, साइकी समझते हैं। सो दिस इज द हम्म। रीजन वी आर एबल टू स्पीक विद द फैक्ट्स हम्म। विच वी नो। लेकिन अभी हम्म। बंदे क्या कर रहे हैं, इस रेट रेस के चक्कर में दे आर डेवलपिंग अ स्टेट वेयर दे विल लुक फॉर द शॉर्टकट्स ओनली, और वो हर हैबिट में उनकी शॉर्टकट फॉर्म होगी, बी इट एनीथिंग, लाइफस्टाइल, हेल्थ, एनीथिंग। क्योंकि वो अपने गोल को चेज ही नहीं कर रहे, वो बस देख रहे हैं कि भाई इससे कोलैब आता है, इससे पैसा आता है, तो मैं भी ये करूंगा। अब वो एज ग्रुप जहां पहले 20 से 25 था, अब वो हो गया है फ्रॉम 10 ईयर्स से लेकर 25, इवन 35 तक जा रहा यस। हम्म। है। तो उसमें दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग द स्क्रिप्ट एंड मॉडिफाइंग एंड जस्ट स्पीकिंग, नथिंग एल्स। मतलब ओरिजिनलिटी का स्पेस ही नहीं दे रहे बिल्कुल, राइट? कि व्हाट इज इट दैट माय हार्ट बिलोंग्स। अब मैं पढ़ रहा था एक्चुअली थोड़ा, जैसे हम देखते हैं इंस्टाग्राम, इट्स मोर लाइक अ सॉफ्ट कॉर्न काइंड ऑफ थिंग, राइट? जब हाँ हाँ। a lot of women creators go into this only fan mode कि यार हमें तो बस मतलब कच्छियां पहन के दिखाना है सीन, हम्म। सब्सक्रिप्शन मॉडल और ये सब ऑन करते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म मनी। बट यार लॉन्ग टर्म आप देखो कि लेट्स से फॉर सम मैरिज इज सीक्रेट, तो मतलब उस पर्सपेक्टिव से देन पीपल ऑलवेज हैव प्री कंसेव, होता है ना कि प्री कंसेव नेशंस की, लाइक इज दिस पर्सन कैन रियली बी अ गुड लॉन्ग टर्म पार्टनर और नॉट? मेरा इस पर डायरेक्ट एक ब्लंट आंसर है, दैट यू आर नॉट बिल्डिंग अ कैरेक्टर इफ यू आर डूइंग दिस सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स। अगर आपको टॉप पे रहना है, टॉप पे जाना है और वहां पे रहना है, इफ यू वांट टू स्टे ऑन द टॉप, देन यू हैव टू बिल्ड अ कैरेक्टर, एंड इट टेक्स टाइम। शॉर्ट टर्म में जाओगे जैसे आप गए हो, वहां से बेइज्जती के साथ नीचे आओगे। दिस इज व्हाट आई नो हम्म। अबाउट द हम्म। गोइंग ऑन टॉप एंड स्टेइंग देयर। हम्म। और इससे बहुत फर्क पड़ रहा है चीजों पे, बच्चों पे बहुत हम्म। फर्क पड़ता है। और क्या ही बोले कि और जो बंदे हैं, मतलब जो बंदियां हैं, वो भी मोटिवेट हो जाती हैं इन चीजों के लिए। हम्म। ये भी उसी में आ जाता है। अब लड़के हम क्या कर रहे हैं, जो लड़के जिन्हें कुछ नहीं पता, जिम जा रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं रैंडम शिफ्टिंग की, और सोचते हैं हमें कॉलम मिल जाए। लड़कियां क्या कर रही हैं, दे डांसिंग ऑन रैंडम लाइंस, जिनका उनका मतलब भी नहीं पता, इतनी गंदी गंदी लाइंस होती हैं वो, और बस वीडियोस डाल रहे हैं, शोइंग देयर बॉडी, द कर्व्स, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कभी कभार जब आप ये फिटनेस कंटेंट देखते हो, मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू शोइंग? हम्म। कहाँ, कौन से बॉडी पार्ट है आपके ऐसे यहाँ पे जो आपको ट्रेन होते हुए दिख रहे हैं? आप क्या या वैल्यू, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड या कर रहे हो? उनका या एंगल आप देखो कौन सा होता है शूट करने का। आई मीन दैट्स रियली वल्गर। आई डोंट फाइंड इट इंफॉर्मेशन एनीथिंग। दैट्स और इस चीज को डेफिनेटली फिर, ट्रेंड। हाँ। अब आप देखते हैं, अगर आप कितने लेट्स से कोट अनकोट फेमिनिस्ट से भी बात करते हैं, ऐसे बातें करनी इक्वालिटी और ये सब की, बट कि यार ऑब्जेक्टिफाई ना करो ये सब, लेकिन एक वो भी होता है कि डोंट ट्रीट अस एज लेट्स से सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स है कुछ वैसा। बट इफ यू सी द टाइप ऑफ सॉन्ग्स दैट दे आर डांसिंग ऑन, वो सर्टेन मीनिंग ही वो है।
हाँ, कि एग्जैक्टली आज उनको ऐसा है। आधों को मतलब भी नहीं पता, ऐसी ऐसी लाइंस पे वो डांस करते हैं, ऐसी या लाइंस पे रील बनाते हैं। अब या तो वो पढ़े लिखे नहीं है इतने, या फिर वो जानबूझ के करते हैं इस काम को। और मैं इन चीज़ों के लिए बहुत ब्लंट हूँ, एंड मैं किसी से डरता नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए, बिकॉज़ हम्म आई फॉलो समथिंग कि ब्लंट रहना है मुझे इन चीज़ों के लिए। जो है वो है, हम्म जो गलती है वो है, उसको करना पड़ेगा हम्म पॉइंट आउट। क्योंकि पुराने टाइम में अपन क्या था, बुली करते थे, ठीक है? एंड हम्म बुली इज़ इक्वल टू क्रिटिसिज़्म। अब कोई इसको कंस्ट्रक्टिव ले सकता है, कोई इसको डिस्ट्रक्टिव ले सकता है। हम्म लेकिन अब तो ऐसा हो गया, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो बुली करने को, क्रिटिसिज्म को कोई कुछ मानता ही नहीं है। इसलिए तो इनकी जो पॉपुलेशन है, ऐसे जो ऐसे वाले जो हैं बंदे, इनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी बात से। हम्म I think bullying can be traumatic for a lot of people. Positive, constructive criticism is the way. क्योंकि हाँ पहले तो चलिए थोड़ा ऐसा भी था झुंड बुद्धि कि किसी ने अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव भी करना है, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी ये सब जब आया था आविष्कार वगैरह, राइट, टिल पीपल क्रिटिक देम और ये सब, दे नॉट वांटेड टू हुँ, make make them let this innovation happen. Sometimes I think going against the grain of salt is important, but इस case में when you see that there's like just long हुँ, term detrimental cost, of course criticism and a lot of हुँ, things हुँ, matter, which brings me to one more interesting perspective. क्योंकि आप देखिए ये कंटेंट चल भी इसलिए रहा है क्योंकि रीच ही इन्हें लौंडे दे रहे हैं जिनका लेट्स से लस्ट पे अपने हुँ। कंट्रोल नहीं, राइट? अगर वो हो प्रॉपर या लेट्स से वैसी एंगेजमेंट नहीं, then eventually it would die off. That's also there. तो दे आर नॉट मस्कुलिन। आई डोंट काउंट देम इन मस्कुलिन। अगर उनका कंट्रोल ही नहीं है अपने डिज़ायर पे, अपने लस्ट पे, तो आई हम्म डोंट, बहुत वीक माइंडसेट है, आई वुड से। हम्म जो इन चीज़ों में पढ़ते हैं, इन चीज़ों को सब्सक्राइब करते हैं, दैट इज़ द वीकेस्ट मैन। पहले के आदमी ऐसे होते ही नहीं थे। हम्म तो मैं तो इतने बोलूँगा उनके लिए, दैट बहुत वीक माइंडसेट है। और अगर उनका इन छोटी चीज़ों पे, बहुत छोटी चीज़ें, टुच्ची चीज़ें, आई मीन आई डोंट काउंट देम टू बी इन अ मैनलीनेस। तो हम्म बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा आगे जाते-जाते। जो हमारा जो कल्चर है अभी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दैट द टेस्टोस्टेरोन इज़ ड्रॉपिंग एवरी ईयर बाय 1% ऑफ हाँ एन जी वो एवरेज मैंने भी मेल। पढ़े। हुँ, आगे जाते-जाते आप सोच सकते हो क्या होगा। हम्म हुँ, That's true, definitely. What do you think makes a man, or if I can use that word, a masculine man, आपकी नज़र में? What is a strong man? मैं स्ट्रांग मैन, अ स्ट्रांग मैन हू इज़ इमोशनली मैच्योर, हू स्टिक टू प्रिंसिपल, एंड हू इज़ कमिटेड टू व्हाटएवर ही, जो भी काम वो पिक करता है। इट इज़ हिज़ कमिटमेंट, एंड ही इज़ कंसिस्टेंट टुवर्ड्स हिज वर्क। जो अपनी मास्टरी पे काम कर रहा है, अपने दिमाग को मास्टर करने के लिए काम कर रहा है, और अपने प्रिंसिपल पे, चाहे वो फैमिली के लिए हो, प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे अपनी प्रोटेक्शन के लिए हो। जो बंदा इन चीज़ों पे काम करता है, इन सर्टेन चीज़ों पे, जो उसको खुद इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग बनाती है, फिज़िकली और मेंटली। पहले ये फिज़िकली था, क्योंकि मेंटली इतना लोड होता नहीं था। अभी हम्म क्या हो गया है, जितना हम ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, जितना ज़्यादा हम सिविलाइज़्ड हो चुके हैं, तो हमें मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। और जो इस टाइम पे अपने आप को, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रख रखा है, तो वो बंदा है मैस्कुलिन, हू स्टिक टू हिज प्रिंसिपल। एंड डेवलपिंग हिज कैरेक्टर, जैसे आपने एक बात अभी की थी कि जी, कैरेक्टर कैरेक्टर या पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाउ कैन वन इंटीग्रेट, कहते हैं ना एक, आई थिंक रॉबर्ट ग्रीन ही बात करते हैं इस पे एक बुक में, मास्टरी है, और मे बी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, एक उनमें से, क्या जब हम अपनी डार्क साइड इंटीग्रेट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ, दैट इज व्हेन वी ट्रूली ब्लॉसम. सो हाउ डू यू थिंक दैट कैन हैपन? क्योंकि हर इंसान में टेंडेंसीज होती हैं, रिच, थोड़ी डार्क टेंडेंसीज, राइट, विच पीपल ऑफ कोर्स हुँ, डोंट शो टू द वर्ल्ड, बट सबके अंदर होती है वो. तो हाँ, हाउ कैन होती है। दैट बैलेंस अब बी अचीव्ड? एब्सोल्यूटली बैलेंस नहीं करना है भाई, उसको एम्ब्रेस करो। मैं तो ये हम्म बोलूँगा। अगर मैं हम्म बैलेंस करता, तो मैं बैलेंस ही करता रह जाऊँगा। आप अगर हम्म डार्क साइड आई वुड से इट इज़ बीइंग ब्लंट, इट इज़ बीइंग मोर इंटेलेक्चुअल। डार्क साइड उसको मैं बोलूँगा। तो अगर मैं वो चीज़ अपनी बाहर नहीं निकालता, तो शायद मेरी जो वीडियो है, वो 2.2 मिलियन जाती थी, हम्म अगर मैं वो चीज़ नहीं निकाल के देता। बिकॉज़ इट इज़ द सॉफ्ट वर्ज़न ऑफ बीइंग डार्क साइड, जो मैंने उस वीडियो में बोला कि अगर आप अट्रैक्टिव हो, तो वो उन इनसिक्योर लोगों के लिए थी, जो सीधी तरीके से नहीं मानते।
तो मुझे अंदर से निकालना पड़ा वो चीज़ और बोलना पड़ा। और वही Hmm. मेरी आगे भी कोशिश रहेगी दैट आई विल स्पीक व्हाटएवर द डार्क साइड ऑफ एवरीथिंग। Hmm. ये सीन है। Interesting. So I think the more we integrate our dark side, the more power one accrues द over पावरफुल वी himself बिकम। यस। and over the world. So how do you define power? मतलब अगर आपको let's say कोई इंसान हो जिसको आप powerful बोलते हैं, power actually में define हो, how does definition from Sanjay looks? फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज इफ दो कैटेगरीज आपको पता है, एक मेंटली एक फिजिकली। फिजिकली वो जिसके एंड्योरेंस ज्यादा है, who can you know run for a day, I mean जो भाग सकता है, काफी ज्यादा भाग सकता है, ही इज पावरफुल, ही इज डेडिकेटेड। और ये चीज ही है मैंने डेविड गॉगिन से उनके जो भी चीजें पढ़ी है हमने, तो दैट इज पावरफुल फिजिकली। लेकिन इसके अंदर आपका मेंटली स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है टू रन इन अ सर्टेन वे फॉर इतना लॉन्ग। अभी मैंने मैंने एक बार एक्सपीरियंस लेने के लिए, कावड़ यात्रा होती है अपनी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार देखता हूँ करके, और मेरा उस टाइम वेट ज़्यादा था, तो मैंने कमिटमेंट दे दी। एंड इट वाज लाइक 250 किलोमीटर्स बाय फुट। तो जब That's 30 to 40 किलोमीटर्स जब मैं चला, Hmm. तो मुझे फील हुआ कि मेरे पैर ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल नंब फील होने लग गया। तब मुझे इम्पोर्टेंस पता चली चीज़ों की, कि क्या डेविड गॉगिंस की मेंटालिटी रही होगी उस टाइम पे जब उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया था, ही वाज ब्लीडिंग आउट एंड ही वाज केप्ट ऑन रनिंग, और उन्होंने पूरी मैराथन पूरी करी। सो दैट इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग हियर फ्रॉम हियर, दीज टू थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, राइट? तो आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो आप फिजिकली स्ट्रांग अपने आप हो जाते हो, मेरा मानना है। आप अपनी बॉडी को कैसे देख लोगे ऐसे सफर करते हुए, समझ रहे हो? तो मेरी नज़र में यही है कि आप ऐसी बॉडी लेके अपने साथ चल रहे हो कि जो आपके मेंटल वेलबींग को सपोर्ट कर रही है, ठीक है? और मेंटली आप कैसे कॉन्फिडेंट हो, या मेंटली स्ट्रांग बंदा कैसे होता है कि वो कितना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, कितना उसका नॉलेज है, कितना इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, कितना उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है, और कितना Hmm. वो स्टिक है अपने प्रिंसिपल्स के साथ। दैट इज व्हाट Hmm. आई गिव द टैग ऑफ बीइंग अ कॉन्फिडेंट गाय। Hmm. That's true, and I think आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उठाई which I just want to relate about insecure people. तो आई थिंक अभी आपने जो ये सारे एक्शंस किए मतलब जो आपने बताए, इफ वन डज दोज एक्शंस, एक साइलेंट पावर एक्रू हो रही है, कहते हैं ना, जो सटली मूव कर रहा है चेस पीसेस, जैसे गॉडफादर मूवी में था। इनसिक्योर पीपल हैव दिस हैबिट कि यार हमें बस लाउडनेस से दिखाना है कि हम बड़े पावरफुल हैं, बट असली में हम बड़े वीक हैं। सो आई हाँ। थिंक आपके पूरे पर्सपेक्टिव से व्हाट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि साइलेंटली एक्रू कर रहे हो आप पावर, राइट, विद टाइम। आपकी मुझे हर बात से मुझे अपनी स्क्रिप्ट याद आ रही है, मतलब मैं जो स्क्रिप्ट बना रहा हूँ इट इज रियल बेस्ड एग्जांपल, जो मैंने एक्सपीरियंस ली अपने लाइफ से काफी है। वो बाद में तो बहुत चीजें आने वाली हैं डार्क, जो आप बोल रहे हो कि डार्क साइड, इट विल कम इवेंचुअली, बिकॉज आई विल नॉट हाइड एनीथिंग, पूरा निकाल के दिखाऊंगा। तो इनसिक्योरिटी के ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट करना। About, I think, just the silent power, when we are accruing silent power versus loud power. Ki insecure people are हम्म। mostly loud in life, right? आपने एग्जांपल देखा होगा, लाइक इफ यू आर अ मेट्रो और अ बस, जी. देयर आर सम पीपल की जो फोन पे बात करते हैं, दे आर वेरी लाउड, मतलब इतने रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। एंड व्हाई दे आर लाउड? क्योंकि उनको वैलिडेशन चाहिए, आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग लाउडर। अपना वो पता नहीं क्या क्या गाते हैं, हाँ ये मतलब समझ रहे हो, अपना आपको वो दिखाना थोड़ा सा, तो वो किस लिए करते हैं? एंड अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म, दैट इज वैलिडेशन, चेजिंग फॉर हम्म. वैलिडेशन, क्योंकि उनको बराबर. कहीं और से मिलती नहीं है। तो आधे हम्म. बंदे यही करते हैं, बस यहाँ फोन लगा लेंगे और स्टार्ट ब्लैबरिंग, स्टार्ट यापिंग हाँ. अबाउट देम। हाँ. हाँ. नहीं, इवन हाँ, इन अगर आप केसेस देखते हैं रोड रेज वगैरह के, राइट, जो बस दिखाते हैं कि यार हम कॉल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट दिल्ली इवेंचुअली, वाले में ज्यादा होता है ऐसा। हाँ, हाँ, मतलब वो तो ऑफ कोर्स समझ दिल्ली गया इज मैं। फेमस फॉर अ लॉट हम्म, ऑफ वियर्ड थिंग्स, बट हाँ जी, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज, व्हिच आई थिंक ब्रिंग्स मी टू वन इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे एक एक केस पे, अब जैसे लाउड एग्जांपल्स है, राइट, दे आर जस्ट वांटिंग अटेंशन, चेजिंग अटेंशन,
हम्म। वेराज अगर आप देखते रोड रेज का एग्जांपल लेते हैं कि कोई साइलेंटली एकदम बस मूव कर रहा है कि ठीक है सीन खत्म करो हम अपने अपने रास्ते, दैट हम्म। पर्सन इवेंचुअली अर्न्स रिस्पेक्ट, लेट्स से काफी लोगों की ना क्या सिचुएशन डिफ्यूज किया, आई थिंक मैस्कुलिन होना या मेल होना वो भी डिटरमिन करता है कि आप लॉन्ग टर्म हम्म। रिस्पेक्ट अपनी अर्न कर पा रहे हैं। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दो, आपकी नज़र ऐसी होनी चाहिए, आपका एक अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और मेरे अकॉर्डिंग मेरी मेंटालिटी तो ऐसी हो गई है कि आई फॉरगिव पीपल वेरी इजीली। फॉरगिव और कैन से फॉरगेट। फॉरगिव एंड हम्म। फॉरगेट मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। हम्म। अभी जो या टेंडेंसी या हो चुकी है, या आई कैन ऐसे में छोड़ सकता हूँ किसी को भी, एंड दैट इज दैट इज अ रियली वंडरफुल टेक्निक फॉर योर ओन मेंटल पीस, because in the end eventually you and your mental peace, these are the two things that you have to live with. हम्म। इनके अलावा कोई नहीं होगा आपके पास। दैट मेक सेंस। आई थिंक हम्म। एक वैसा पर्सपेक्टिव कि बस हम लॉन्ग टर्म जीत पा रहे हैं अपने लिए, राइट, फॉर आवर हम्म। ओन स्पेसिफिक हार्ट, फॉर आवर ओन स्पेसिफिक वैल्यूज, एंड जितना हम दे सकते हैं वर्ल्ड को थ्रू आवर ओन यूनिक क्रिएटिविटी, दैट आल्सो जी, इज जस्ट बीइंग दैट इज द ऑसम। थिंग। हम्म। या सो आई थिंक एक ये हम्म। पर्सपेक्टिव भी था अबाउट, सिंस वी टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया, एंड आपका भी आई हम्म। थिंक काफी काम सोशल मीडिया पे, हाउ कैन, कई बार होते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आपने देखा है काफी लोग फेक कर रहे हैं जस्ट टू गेट वैलिडेटेड और उस टाइप की चीजें, एंड कईयों में ऐसा होता है कि करेज ही नहीं हाँ। होता स्टार्ट करने का फॉर देयर ड्रीम्स या उन्हें कुछ रखना है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दीज टू टाइप ऑफ पीपल कि एक तो करेज के चले एंड दूसरा जो चेस करने के पीछे सब कुछ खोते हैं अपना इंडिविजुअलिटी और ये सब। हाँ, चेज करने के लिए पीछे वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पीछे उनका कोई मोटिव ही नहीं होता। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग वीडियोज, वाई एम हम्म। मेकिंग वीडियोज, आई नो दैट मेरे को आई जस्ट वांट टू गेट पीपल एजुकेटेड, टू गेट हम्म। awareness for these type of manipulation and how to overcome these fears which I have faced personally. तो अब हम्म। मेरे पास एक पर्पस है एंड दे डोंट हैव पर्पस, मतलब वो हम्म। चीज बस उठा रहे हैं डाल रहे हैं, उठा रहे हैं डाल रहे हैं, वो अपना दिमाग चला ही नहीं रहे, उनके पास पर्पस ही नहीं है क्या। मतलब आपको, हम जो लोग चल रहे हैं, हमें जो व्यूज मिलते हैं, हमें जो क्लैप मिलती है, ये हम एक सर्कल है हम सबका, जो हम एक सर्कल से ही एक दूसरे को बना रहे हैं। ठीक है, और हम हम्म। बनते कैसे हैं, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट प्लेस। हम्म। सो जितना आप वैल्यूएबल बनोगे उतना ज्यादा आप अर्न कर पाओगे। द मोर वैल्यूएबल यू आर, द मोर यू विल अर्न। आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आप वैल्यू कहाँ से होगे, तो उसके अंदर फिर आते हैं डिसअपॉइंटमेंट, उसके अंदर फिर एंजाइटी भी आती है जब आप चेज करते हो और कुछ आपके हाथ लगता नहीं है। तो मेरा मानना ये है, यू हैव टू डिसाइड योर पर्पस। एंड पर्पस ढूंढना इज ऑल्सो आई थिंक अ जर्नी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट, कि हम जितना हाँ, ज्यादा इसके ऊपर मैंने एक एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। हाँ वीडियो बनाई थी, इस पर मैंने एक हाँ हाँ हाँ, आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग कि दैट एकदम आई थी वो सामने, सो दैट्स व्हाट आई हाँ, वांटेड टू शेयर। उसमें ये है कि यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। 30 डेज के लिए अपने आप को लॉक कर लो, लॉक योर सेल्फ, हम्म। एंड इन दैट रूम डिजाइन दैट रूम ऑफ योर्स। ये मेरा रूम नहीं है, मैं आपको अपना रूम दिखाता, मैंने बहुत रैंडम है, मतलब कहीं हाँ। कार्डबोर्ड पे मैंने कुछ भी लिख रखा है, जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कहीं भी कुछ भी लिख दिया, सो दैट कहीं भी मैं देखूं अगर, तो मुझे पता चले कि हाँ, आई हैव टू स्टिक टू दिस, आई हैव टू स्टिक टू दिस। ये मेरे प्रिंसिपल हैं और ये मेरे पॉइंटर्स हैं जो मुझे करने ही हैं। तो 30 डेज के लिए भाई अपने आप को लॉक कर लो, आई वुड से। और इंटरेस्ट पता चलता है करके। मैंने भी एक्सपेरिमेंट की, स्टार्टिंग की मेरी आप वीडियोस देखोगे, मैंने इसलिए या डिलीट ही नहीं करी वो, सो दैट या इफ एनी गाय कम लाइक इंट्रोवर्ट या कोई भी बाहर से आए देखे प्रोफाइल, तो वो देखे कि मैंने कहाँ से शुरू करा एक्सपेरिमेंट करना। सो वट एवर आई से इन द वीडियो, आई फर्स्ट अप्लाई इट टू माई सेल्फ, और वही मैंने किया। तो मैं यही बोलूंगा, एक्सपेरिमेंट करो, बी इट एनीथिंग जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, राइटिंग, सेल्स, कॉपीराइट, मतलब जो भी जितने भी टाइप के होते हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसको पकड़ो भाई, और उसमें घुस जाओ, अंदर तक घुस जाओ, इतना अंदर तक कि शायद आपसे ज्यादा किसी को पता ना हो। वैसे तो ये हो नहीं सकता कि आपसे ज्यादा किसी को पता ना हो, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी अ लर्नर इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, यू नो। तो घुस जाओ उसके अंदर, यू हैव टू बी, ढीठपना दिखाना आपको पड़ेगा, यू हैव टू बी स्टबन व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस। एंड आई थिंक ग्रोथ माइंडसेट रखना फाउंडेशन में कि यार
ग्रोथ सीखते ही रहना माइंडसेट। चाहिए, हाँ जी। वही डिफरेंस आ हम्म। जाता है, एक मतलब अलग कोड ही करना पड़ेगा अपने आप को पूरा, टू just kind of walk into this path, which हम्म। I actually wanted to pivot thoda sa, I think, to our हाँ I think India is very rich from a spirituality perspective. If we genuinely read गीता और ये सब ना, तो वो हाँ हाँ हाँ। सेंटरनेस आती है, स्टैब्लिश होती है लाइफ। एंड जेंजी वगैरह में मैं ये देखता हूँ कि एकदम डिसडेन से देखना है, दो टेक्निकली आई एम ऑल्सो जेंजी, बट आई लव वेरी मच ये स्पिरिचुअल टेक्स्ट और ये सब पूरा जानना। सो आपने देखा होगा शायद अपने एक्सपीरियंस में कि थोड़ा ना डिसडेन से देखते हैं, उसके जैसे एक सेंटर भी हिल रहा है हमारी लाइफ में, राइट? एक व्हाट आर योर हम्म। ओपिनियंस ऑन दिस, कि मतलब हम अपनी व्हाट इज योर कोर एज बाय द टेक्स्ट। वे? So I'm 28 right now. Technically, after 95 Gen Zs are there, right? तो वैसा है। ना ना, ऐसा किसने बोला यार, मैं I think मैं 96 हूँ। पढ़ रहा था एक, I don't remember it, but वैसा है। ना ना, I ऐसा don't कुछ know। नहीं है। तो अच्छा अच्छा। देखो, जन, हाँ ये बोल सकते हैं जनजी से। मैंने बताया ना कि उनका सबका हम्म सेम स्ट्रक्चर हो चुका है, हम्म माइंडसेट भी, आउटफिट्स भी, एनीथिंग लाइक फिजिकल वाइज, सब कुछ। तो देखो, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जब अगर मैं देखूं, तो अगर मैं किसी को एक बुक पढ़ने के लिए दूं, कि मैं ये बोलूं कि इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग अ बुक, स्टार्ट फ्रॉम दिस, एंड द बुक विल बी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हम्म and the second book will be The Secret, which is हम्म about law of attraction, law of universe. हम्म तो वो उसको अभी के जेंसेस, आई डोंट थिंक दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, एंड रीजन बीइंग कि वो इतने डेडिकेटेड है ही नहीं, वो इन चीजों को सीरियसली ले। और जितना मैंने इंटरकनेक्ट किया इन चीजों को अपने हिंदुइज्म से और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, दे आर बोथ प्रोपोर्शनल, दे आर बोथ अगर मैं बोलूंगा इज इक्वल टू दस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू भगवत गीता। तो ये हम्म दोनों इंटरलिंक्ड है। या तो आप ये पढ़ लो अगर आपको अपना बिलीफ सिस्टम या अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है, या आप ये पढ़ लो। इन दोनों में से वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो कहीं हम्म से तो पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ना उन चीजों में, हमारे देवी देवता मतलब है, ऐसी मेंटालिटी है, नहीं इंटरेस्ट उनको, तो जो उसका जो एक क्या बोलते हैं आउटकम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ डायरेक्ट थिंग। अगर आपको नहीं जाना, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ो, लॉ ऑफ यूनिवर्स पढ़ो, आप उससे अपने आप को मैनिफेस्टेशन के अंदर डालो। लेकिन बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। हम्म एंड आई बिलीव, आई एम अ लॉट, मतलब मैं एक बहुत अच्छा बिलीवर हूँ इन चीजों का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि मैंने जो स्टैब्लिश करा अपना लर्निंग वाला फेस, वो स्टार्ट ही ऐसे किया, इन चीजों से। तो जब आप इन चीजों से स्टार्टिंग करोगे, तो आपको जो भी आप नॉलेज इसके बाद कंज्यूम करते हो, वो सीधा जाएगी आपके अंदर, आपका हम्म कैरेक्टर बिल्ड होगा। अभी क्या है, इनकी जो लर्निंग हैबिट्स है, अगर अब मैं चॉइस ऑफ बुक्स की बात करूं, जैसा मेट्रोज वगैरह में जाते हैं, तो उनकी चॉइस ऐसी होती है, लाइक जो थोड़ी सी एक बुक है, क्या नाम है, द सबल आर्ट ऑफ द नॉट सटल आर्ट गिविंग ऑफ फक। नॉट गिविंग अ द फक, हाँ जी। सबल, हाँ। मेसन की, हाँ, मार्क मेसन। हाँ, तो ऐसी ऐसी चॉइसेस होती हैं जस्ट टू फील मैं थोड़ा सा कूल हूँ, या इस टाइप, रीडिंग के लिए नहीं, सिर्फ कूल दिखने के लिए, जस्ट टू हम्म फॉलो द ट्रेंड। मतलब वो भी है कि अच्छे से नहीं पढ़ना, जस्ट टू शो पीपल कि हम्म। मतलब मैं भी बस हम्म। कूल थिंग्स कर रहा हूँ, कोट अनकोट, इफ आई कैन ऐड दैट जी। वर्ड, कूलनेस। अभी मैं देखता हूँ, जैसे मैं चेक करता हूँ मेरे फॉलोअर्स, मतलब कौन है, क्या है, कैसे है, मैं सब कुछ चेक करता हूँ। मैं हर एक फॉलो चेक करता हूँ, हर एक लाइक चेक करता हूँ। उससे क्या है, मुझे उनके बायो से उनकी मेंटालिटी पता चलती है। ठीक है। तो अभी एक पैटर्न है, पता नहीं मैंने ही नोटिस करा है या मैं अलग सोच रहा हूँ। अभी लोग क्या है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जीरो पोस्ट एंड देयर इज नो डीपी, ऐसा एक ट्रेंड चल चुका है। मतलब वो इतने ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि वो अपने प्रोफाइल पिक्चर तक नहीं लगा रहे बंदे। आगे जाके पता नहीं क्या होगा। अभी जब अपने टाइम की अगर मैं बात करूं, तो वी यूज टू शेयर ईच एंड एवरी मोमेंट विद फीलिंग्स, नो। पहले फेसबुक पे एक फीचर होता था दैट आई एम फीलिंग एक्साइटिंग विद अदर्स, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग मीन वाचिंग दिस मूवी विद अदर्स। तो एक सोशल मीडिया का जो पर्पस था, वो असलियत में यही था, यू हैव टू बी वेरी स्टर्न अबाउट योर फीलिंग्स। उस टाइम पे ऐसे शेयर होता था। अब धीरे धीरे वो सैचुरेशन पॉइंट जो आ चुका है, उसकी वजह से वो चीजें फिर डाउन साइड पे जा रही हैं। जहां आपको उन मतलब चीजों से हिट मिलता था, अब वो धीरे 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 बहुत ज्यादा डाउन जाएगा। आगे का मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, बट
डेफिनेटली इसका आने वाला है, आफ्टर इफेक्ट इसके आएंगे सोशल मीडिया के और इन चीजों के। एंड आई थिंक स्मार्टनेस आजकल इसमें भी है, लाइक थोड़ा वी जस्ट विड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम सच थिंग्स, जस्ट कॉन्शियसली अपने पर्पस और इस सब पे पूरा जान ला के एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, ताकि जस्ट प्रोटेक्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ स्कैम्स और उस टाइप की चीज़ें। आप ये भी देखते होंगे कि लस्ट की वजह से कितने लोग स्कैम हो रहे हैं, कितने केसेस हो रहे हैं, या फलाना रेस्टोरेंट में गए इतने करोड़ों के बिल, या जो भी है आपको पता है, मतलब यू रीड अ हाँ, लॉट मेरा ऑफ एक न्यूज़ फ्रेंड तो है उसमें। काश, वो इस चीज पे कंटेंट बनाते हो, या आई ऑल्सो स्कैम्स पे टॉक ही। टू हिम, हाँ जी, आई थिंक आकाश गंदास वी आर टॉकिंग, राइट? हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, या वो सो फ्रेंड है हमारे यहाँ, हाँ, मिलते रहते हैं हम दैट्स रेगुलरली। that's great, हाँ जी। I think I had also reached out to him for a podcast. I think he's a bit caught up, but हाँ, उनके कंटेंट से भी he's at आज least doing बिजी a क्या है। good thing। हाँ जी, हाँ जी, he's also bringing in that awareness, क्योंकि लॉन्डो की एक वैसा भी होता है कि यूजुअली ना कई बार जो जेन्युइनली मतलब स्ट्रगल करे, जेन्युइनली बेचारे फंस गए, दे आर जस्ट विक्टिम्स ऑफ अ पैथेटिक, कह लो पैथेटिक विक्टिम्स मनी तो क्या, मेकिंग बट स्कीम। सारा खेल यहाँ का है। इफ यू आर नॉट आप लस्ट में नहीं हो तो दैट्स आप इन ऑल्सो चीजों देयर। में पढ़ोगे नहीं। हम क्यों नहीं यस, पढ़ रहे? या हम क्यों नहीं पढ़ रहे? हम या डेडिकेटेड है अपनी कुछ चीजों के लिए, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए। या सारा खेल उसी का है। No, that makes sense. I think so. Just to bring this podcast to an ending note, so usually in हम्म, this section क्या होता है कि मेरा पिछला गेस्ट एक क्वेश्चन छोड़ता है इस गेस्ट के लिए, मतलब जो करंट गेस्ट है, and अभी हाँ I would also request you to leave a question for the next guest. So the question that she had left was कि let's say अगर आपकी लाइफ में कोई लिमिट ना हो, कुछ भी ना हो, right? And हम्म, you can achieve anything that you want to. What would that thing be? आई एम आफ्टर विजडम, नॉट चेजिंग, आई एम आफ्टर विजडम। आई जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करती है, वो इतनी ज्यादा कि मुझसे ज्यादा कोई जान ही ना पाए, विच इज रियली नॉट पॉसिबल इवन इफ इट्स अ विश। और Oh, मेरी तो that's ये interesting. विश है इसमें। हाँ, मेरे को नॉलेज की इतनी भूख हो चुकी है ना, मतलब आई एम जस्ट डाइंग ऑफ फॉर विजडम, किसी भी चीज की। आई जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस प्लैनेट। And wisdom also helps us to just function, right, in a very optimal way हम्म for ourselves. हम्म I think that's the reason. मेरे को एक नवल की भी बात याद आती है. He says that wisdom is knowing the long-term consequences of your current actions. तो हाँ, that's also नॉलेज there. इज द कर्स, Yeah. एक कमेंट आया था मुझे Yeah. एक वीडियो पर, तो यही कमेंट था, नॉलेज इज अ कर्स, और कल वाला साइन जो होता है वो, वहां से मैं समझा कि हाँ चलो, ही इज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। No, that's interesting. Great. So can you also leave a question for the next guest, Sanju? Basically, I mean, you invite your guest, like which Anything. So that's the profession or fun. which. मतलब कुछ भी हो ऐसा, anything that you'd like to ask. So that's where the mystery is. कि you just don't know who will come next. Are you a manipulator, and how many times a day you manipulate person, and what is the tendency? I mean, what is the intensity, and what exactly do you want from that person? That's an interesting question. Great. So I think that would be it for this podcast. Thank you so much for joining. I think इस पूरी conversation में there are like a lot of insights for हाँ let's say a normal male कि यार किस तरह एक थोड़ा सा direction है अगर अच्छे से लगे हुए हैं जिंदगी के. So I think probably a lot of value would be filled in this conversation. यस डेफिनेटली देवशीष, बहुत मजा आया आपके साथ, मतलब और होता तो मजा आया क्या बहुत है? ज्यादा। फ्यूचर में देखते हैं और ज्यादा कोलैब करेंगे, और देखते हैं Definitely, क्या होगा। definitely, yeah. Great. Okay. So thank you guys. I think this is Sanju joining us. So that was the podcast, guys. Thanks for watching. And do write what guests or what topics would you like me to talk upon in this podcast series. We do have a bunch of awesome guests coming, but you stay connected. And until then, this is Debashish Pindra from the Buki Dastak signing off. Cheers.